hackathons are not just restricted to technology, technical students. If you try to make happy everyone, then your platform will become complex. India is blooming into startups. There are a lot of startups that are blooming, and it is a privilege for our generation to see that. Hiring is definitely one part, but how do you retain them? Because when it comes to the retaining, it is not always only about the technology. AI is just like another tool. Mhm. AI definitely is more intelligent. Mhm. AI definitely can give you formulas. AI definitely can give you solutions right away. But जो एक touch होता है ना, human touch. So my only message to all the young people is that don't give up. Welcome back to another episode of Techie Talks with Kuldeep. I am your host Kuldeep Singh. Today we are excited to have Sangya Srivastava with us. She is the CXO at Where You Elevate. Let's hear more directly from her. Sangya, welcome to the show. Hello Kuldeep ji. Thank you so much for having me on your show. It is our honor and privilege to have you here in our office, and it is wonderful sitting with you and having this conversation. So before we start our conversation, could you share about your background and also how is your day-to-day looks like at Where You Elevate? Okay. So if I talk about my background, so I am basically a engineer by degree. Obviously, I have worked as software engineer into IBM, and then while we were pursuing Eternity Foundation, जो कि हमारा Very Elevate से पहले एक non-profit organization था, मेरा इंटरेस्ट जगा टू अंडरस्टैंड हाउ नॉन प्रॉफिट वर्क्स. देन आई वर्क विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक एनजीओ था. आई वॉलंटियर इन पुणे, एंड देन हम आई केम फुल टाइम इनटू वेर यू एलिवेट इन द कोविड टाइम इटसेल्फ. Okay. और उसके बाद फिर हमने इंटर्निटी फाउंडेशन को पूरा प्रोडक्टाइज किया वेर यू एलिवेट में, एंड इट इज़ अ होल लॉन्ग ऑफ जर्नी. 3 years, 4 years into the system, and yes, it is going good. If I talk about मेरा day to day कैसा दिखता है, I, as my designation also says, Chief Experience Officer. Yeah. So I call myself the people person. So मेरा दिन टास्क से ज़्यादा लोगों से स्टार्ट होता है. I interact with my team, I understand. So before understanding कि आपको टास्क क्या असाइन करना है, आई डू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दे हैव फेस्ड एंड व्हाट इज देयर डे लुकिंग लाइक, सो दैट आई एम एबल टू. कई बार सी ऑल डेज आर नॉट सेम. कई बार यू हैव योर लोज, कई बार यू हैव योर हाईज. सो यू हैव टू एज अ पर्सन अंडरस्टैंड दैट ओके, एज मैनेजर मेरा काम सिर्फ ये नहीं हो सकता कि भाई ट्रांजेक्शनल की आप डिलीवरी दो. आप मेरे साथ जुड़ोगे, आप मेरे साथ काम करोगे, तभी आप लंबा मेरे साथ भी रहोगे और आपको मेरे से वैल्यू भी मिल पाएगी. सो येस, ऑब्वियसली आई टॉक टू पीपल, आई अंडरस्टैंड देयर वर्क एज वेल, एंड देन ऑब्वियसली टास्क आर असाइंड एंड वी प्रोसीड. मैं मल्टीपल स्क्रम कॉल्स करती हूँ, मैं बाहर भी आती हूँ, मैं उनसे बात भी करती हूँ. समटाइम्स आई डू ट्राई एंड हेल्प देम इन देयर वर्क ऑल्सो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि भाई और बेटर क्या हो सकता है. सो येस, ओवरऑल आई विल से 90% ऑफ द डेज I try and make the day most productive for both the parties, for me and for my team as well. So yeah, this is how it looks like. And one very interesting thing which I see is the talent, engagement, and the experience is always defined as the core mission of Where You Elevate. Yes. First, we would like to understand why it is so and how do you ensure that the experience is always smooth. So experience not only means कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स आ रहे हैं, जी. a brand coming in, that is where my role comes in. A user comes to my platform, a brand comes to my platform, ठीक है. I have to ensure that both the parties, जो भी दोनों entities हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, they have to get best out of it. So if a user is coming and he or she is exploring the platform, दे हैव टू गेट. अगर वो हैकाथॉन के लिए आया है एक्सप्लोर करने के लिए, अगर वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए आया है, तो उसे वो मिलना चाहिए. ठीक है. अगर कोई ब्रांड आ रहा है तो हमारे को ये इंश्योर करना है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट किसी ब्रांड का स्पेशली, सो हम लोग एक्सपीरियंस इंश्योर करने के लिए इन एवरी मीटिंग दैट इज हैपनिंग विद सेल्स, बिफोर द एग्रीमेंट स्टेज में हमेशा उन कस्टमर के साथ मीटिंग के लिए जाती हूँ to understand the checklist so that I along with my sales team is able to extract जो भी उन्हें चाहिए.
अदरवाइज अगर वो चेक पॉइंट्स नहीं मीट होते हैं, ऑब्वियसली एक ब्रांड का एक्सपीरियंस मीट नहीं हुआ, एंड एक्सपीरियंस मीट नहीं होने का मतलब है कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज स्केलेबल एज वेल। हम बड़े ब्रांड्स के साथ में कर रहे हैं, हम ग्रैंड थॉर्टन के साथ में कर रहे हैं, हम सिंक्रोनी के साथ में कर रहे हैं, हम DSCI साइबर CCOE के साथ में इतना बड़ा हैकाथॉन कर रहे हैं, एंड वी हैव बीन डूइंग इट विद multiple corporates now and with government every year. So to ensuring the checklist, the experience is very important, and that is why हमने ये experience ensure करा, इसीलिए हम साल में एक hackathon government के साथ कर पाते हैं, and CCOEs is repeating Great AppSec is happening second time on our platform. Okay. So that is one of the biggest thing that is as a chief experience officer is my accomplishment कि हम वो experience customer को दे पाए, जो उन्हें चाहिए वो हमारे platform से उन्हें मिल पाया, वो deliver हो पाया. So yes, this is my strategy, and I think if I talk about experiences, it also comes कि हम कितना value दे रहे हैं. Okay. Value हमेशा एक बहुत major role play करता है किसी भी brand, किसी भी user के साथ interact करने में. So yes, this is how our motto and our work happens. जितनी ज़्यादा opportunities platform पे रहेंगी, एक brand को deliver होंगी, उतना ही ज़्यादा टैलेंट इंगेज करेगा. टैलेंट अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई भी टैलेंट आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों आएगा? आजकल हर एक बच्चे को, मैं जेनजी टैलेंट की अगर बात करूं, सो हमारे टाइम पर, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, हमारे टाइम पर हम लोग बात करते थे नौकरी मिलनी चाहिए. आज टैलेंट बात करता है कि मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये कहते हैं या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि आपको मेरी बैकिंग है, तुम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, अच्छा काम करो. तो वो अच्छे काम की तलाश में होते हैं, और उस अच्छे काम की तलाश के लिए वो ज़्यादातर अगर टेक्निकल बच्चे हैं तो वो जाएंगे, वो समझेंगे कि कंपनी क्या काम कर रही है, उनका प्रोडक्ट क्या है, उनका विजन क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर, तभी वो आगे बढ़ेंगे. रैंडमली मेरी अपनी अच्छी इंटरनल HR में, हमारी इंटरनल HR ऑपरेशंस में टीम है, मेरी टैलेंट एक्विजिशन टीम है, ये इतनी बड़ी है, बट रैंडमली मैं खुद ग्राउंड पे क्या चल रहा है, बच्चे आजकल किस तरह के, मैं खुद भी कॉल करके एक आध बार किसी अपॉर्चुनिटी पे करती हूँ. एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो वो मेरे से पूछते हैं, जस्ट दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग कॉल, एक रैंडम कॉल. किसी एक बच्चे ने मेरे फुल स्टैक डेवलपमेंट इंटर्न पर अप्लाई करा मेरे प्लेटफॉर्म पे. देयर वर अराउंड 2500 एप्लीकेशंस. मैंने एक रैंडम बच्चे को कॉल करा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा what's your current location and this is what I'm calling from where you elevate and this is what we do. उसने मेरे से 5 मिनट तो मेरे से सवाल पूछे कि वेर यू एलिवेट क्या क्या काम करता है, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अच्छा आपका प्रोडक्ट, आपकी टेक्नोलॉजीज आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, ये है वो. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, एंड दिस इज़ अ शिफ्ट विच आर जनरेशन एंड दिस जनरेशन इज सीइंग. आज के बच्चे 80-90% वो सिर्फ नौकरी के पीछे नहीं हैं, वो अच्छे काम के पीछे हैं. और अगर इस टैलेंट को आपको केटर करना है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म भी उस लेवल पर लाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये मिसमैच हमेशा था और हमेशा रहेगा. हमेशा बच्चे बोलते रहेंगे कि मेरे पास नौकरी नहीं है, और हमेशा कंपनीज बोलती रहेंगी कि मेरे पास अच्छा टैलेंट नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा एक गैप है जिसको हम लोग वी एज अ ब्रिज आर फुलफिलिंग. So Sangya, you emphasize more on the skill based experiences. How do you ensure, right, during the hackathon also these parameters are touched, and also when you go into the hiring process also these things are ensured, so that there is a long term relationship between the employer and the employee. So हैकाथॉन बेसिकली, अगर मैं सिर्फ हैकाथॉन की बात करूं तो ये अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. Okay. अगर कोई कैंपस, कोई भी कॉलेज, कोई भी कॉर्पोरेट हायर करता है, सो वो अपने आप में इतना स्मार्ट है, उसे पता है कि मेरे को किस टाइप का टैलेंट चाहिए. So he knows the skill set. He knows the skill set very well. अदरवाइज क्या होता है, मेरे दिमाग में एक पोजीशन आई, और ये मैं जनरलाइज वे में नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग अप अ स्टेटमेंट. कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स जो है हायरिंग ऐसे करते हैं कि अच्छा मेरे कॉम्पिटिटर ने हायरिंग करी है तो शायद मेरी भी रिक्वायरमेंट होगी, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है. बट व्हेन अ पर्सन इज इन्वेस्टिंग इनटू हैकाथॉन, ठीक है, ही और शी इज वेरी मच क्लियर अबाउट द फैक्ट कि भाई मेरे को किस तरह की हायरिंग चाहिए. नाउ व्हेन द कॉर्पोरेट इज और द ब्रांड इज सो मच पर्टिकुलर कि मेरे को किस तरह की हायरिंग चाहिए, सो ही नोज कि भाई मेरे को स्किल सेट क्या चाहिए, मेरा प्रोडक्ट किन स्किल सेट्स पे बेस्ड होगा, कैसे वर्क करेगा. इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एक आपको एग्जांपल दूंगी जो कि रिसेंटली हुआ था. सो देयर इज अ कंपनी जो कि हमारी पार्टनर कंपनी है, उन्होंने अपना एक चैलेंज रन करा था, राइट.
यूफोरिया इनोवेशन चैलेंज। नाउ उनको हायरिंग करनी थी हमारे प्लेटफॉर्म से, राइट? उन्होंने हैकाथॉन, वो छोटी छोटी हायरिंग हमारे प्लेटफॉर्म से करते थे, एंड ही वाज वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि भाई मेरे, एंड इट इज अ स्टार्टअप, कि मेरे को हैकाथॉन विनर्स चाहिए। तो अभी तक हम लोग जनरल मॉडल में वी एक्टेड एज द वर्चुअल टैलेंट पार्टनर, और हमने उनको हैकाथॉन विनर्स की हायरिंग या हैकाथॉन पार्टिसिपेंट्स की हायरिंग करके दी। बट नाउ ही वांटेड टू कंडक्ट अ हायरिंग हैकाथॉन फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। हमने हायरिंग करी। नाउ उन्होंने चैलेंज रन करा, राइट? एंड उन्होंने पहले आइडिया सबमिशन करा। नाउ ये अपने आप में एक फैक्ट है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पार्टिसिपेशन से लेकर सोल्यूशन सबमिशन एंड देन फाइनल प्रेजेंटेशन, द ग्राफ डिक्रीजेस। रजिस्ट्रेशन हमारा आया 1050 समथिंग रजिस्ट्रेशंस थे ऑन द 3 जो उन्होंने पोजीशंस उनको हायर करनी थी। देन उनका नेक्स्ट आया रजिस्ट्रेशन के बाद जब आइडिया सबमिशन का था, सो पार्टिसिपेशन में अराउंड 500 550 बच्चे थे। आइडिया सबमिशन ड्रॉप डाउन टू अराउंड 300। ओके। एंड देन जो फाइनल प्रेजेंटेशन के दिन आए वो 150 280 बच्चे हैं। सो ये इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन था, और सिर्फ एक पोजीशन के लिए टीम पार्टिसिपेशन था। 3 पोजीशंस थी तो 2 के लिए इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन। अब ये ग्राफ गिरा, राइट? सो जो 1000 बच्चों से लेकर ये जो 150 बच्चे आए हैं, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के बारे में रिसर्च करा है इन्होंने, सोल्यूशन सबमिशन करा है, राइट? उन्होंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है उसके ऊपर पढ़ाई करी है। ठीक है, कितने भी एआई टूल्स आ जाए, लेकिन उन एआई टूल से भी जो सोल्यूशन आ रहा है उसको भी तो इम्प्लीमेंट करना है ना। एंड देन उन्होंने उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ आए, तो प्रेजेंट भी तो वही कर सकता है ना जिसने पढ़ा होगा। सो सिलेक्शन रेशियो अपने आप में वो डिफाइन कर देता है कि भाई मेरे पास ये 150 बच्चों का टैलेंट है, ये मेरे ब्रांड को समझ कर आया है, मेरे सोल्यूशन को समझ कर आया। अब मेरे लिए इजी है, मुझे पता है कि अगर मैं इन 150 बच्चों में से 10 बच्चे भी हायर करता हूँ या करती हूँ, तो वो मेरे ब्रांड के लिए रुकेगा और मेरे उस प्रोडक्ट के लिए काम करेगा। क्योंकि अगर उन्होंने अपने कोई प्रोडक्ट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है, राइट, तो वो ऑलरेडी उस पर कुछ तो अपना दिमाग लगाकर आ चुका है। नाउ इट इज वेरी इजी, रादर देन आप पहले दिन बच्चों को ट्रेन करो, 1 हफ्ता ट्रेनिंग दो, 10 दिन ट्रेनिंग दो, 15 दिन ट्रेनिंग दो, और उसके बाद आप उनको डिप्लॉय करो। वो भी आप श्योरिटी के साथ नहीं हो कि अच्छा इससे रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। हैकाथॉन गिव्स यू अ प्लेस जहां पर, अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप ये जो गैप को, ये ट्रेनिंग के गैप को आप ब्रिज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, रॉ से रॉ बच्चा अगर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करता है तो वो अपने आप में अपना ब्रेन, अपना स्किल इतना ऊपर लेके जाता है। एंड स्पेशली जब हम लोग विद द विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी हम लोग इतना हैकाथॉन्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 90% हायरिंग आजकल स्टार्टअप्स की वो हैकाथॉन्स और चैलेंजेस के थ्रू हो रही है। इवन MBAs हैव स्किल बेस्ड हायरिंग। We have run a skill-based hiring case study competition for a company in Bangalore, which was blockchain-based. और उन्होंने अपने sales के बंदे case study challenge के through hire किए थे, right? So hackathons are not just restricted to technology, technical students. They have moved ahead with the time for non-tech as well, and it will soon be expanded to across. And I can see बहुत समय नहीं है जब हम स्कूल्स में और हर जगह ये अपने जो एग्जाम्स हैं ये हैकाथॉन और MCQs और असेसमेंट्स के बेसिस पे कर रहे होंगे। Now I understood it very clearly, right? What is the benefit, right? For example, what you described, right? The company knows now like 1,000 plus it was there. They were into this part of the pipeline. This were part of like this till the end. These are like the 150 people who have reached it, and that might have shown them like what their level were in each one, were they able to do, and also like till the last, right? Hey, even if you were able to build the solution, were you able to present it also? Because for a startup, that's also one of the niche skill set. And from a the person who is looking to get hired is very clear what is this company working on. If I'm not aligned, I'm not going to do it. Second thing, is that even interesting? And might be during that journey he found like, hey, this idea is, of course I have built it and I have solved the problem, but this idea is not of my interest, and then he can also look for the alternative, and if he sees the value, he can start working them with the right one. So it gives them a great match from the day one. Correct. And this links to the bigger problem, right? What we see also in the
in the world is saying that there is a gap between academic versus the industry readiness. From your day-to-day work, do you also see the gap still? And if that gap is there, how big it is, and what where you elevate is doing to reduce that gap? हफ्ते में 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स जिसमें मतलब जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपना ब्रेक लेके या छुट्टी लेकर या हाइब्रिड मोड में है, वो लोग अपना टाइम यूटिलाइज करके बच्चों के पास जा सकें और इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं उनको एड्रेस कर सकें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे सकें और उसके बाद बच्चों को भी वो एक्सपोजर मिले कि अच्छा जो लाइव प्रोजेक्ट्स पे लाइव प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो कैसा दिखता है। सो इसके लिए बेसिकली ऐसी कंपनीज भी इवॉल्व हुई हैं जो कि अपना करिकुलम इम्प्लीमेंट कराती हैं कि भाई आपके कॉलेज का ये फायदा होगा। आई थिंक सर्टेन रेगुलेशंस हैव कम अप फॉर कॉलेजेस आल्सो कि कुछ एक्रेडिटेशंस हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं एंड उसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं एंड माय एकेडमिया टीम, व्हाट आई एम एबल टू सी इज दैट माय एकेडमिया टीम इज एबल टू डू इट ब्यूटीफुली। हम लोगों का अगर मैं बात करूं तो जो पिछले साल से ही हमने इसको शुरू करा है, रिजल्ट्स हैव कम अप लाइक इन अ मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर। जो रिजल्ट 300 400 स्टूडेंट्स का एक कंपनी में प्लेसमेंट का था, दैट हैज रिजन टू 700। ओके, जस्ट बिकॉज कि ये इम्प्लीमेंटेशन आया है कॉलेजेस में, बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स दिए जा रहे हैं एंड स्टूडेंट्स आर शोइंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट कि यार अच्छा डीएसए में ये प्रॉब्लम इस तरह से इंडस्ट्री में यूज होती है। अच्छा एआई ठीक है, मैं अभी चैट जीपीटी तो यूज कर रहा हूँ, बट सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना नहीं होता। चैट जीपीटी का जो राइट प्रॉम्प्ट होता है वो क्या होता है, उसको किस तरह से हम डाल सकते हैं, किस तरह से उसको मोल्ड करना है ताकि मुझे राइट रिजल्ट मिले। चैट जीपीटी यूज करना इज इट्स लाइक आप भेड़ चाल में अगेन आप चले गए, राइट? और सब लोग वही कर रहे हैं, बट राइट तरीके से यूज करना अगर आपको नहीं आया है तो आप उसको कभी भी राइटफुली यूज नहीं कर पाओगे। जैसे मतलब बेसिक है, कंप्यूटर्स आई थिंक हम लोग जब 6-7 क्लास में थे तब हमारे घर में कंप्यूटर्स आए थे, बट उसका राइट इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को कब समझ में आया, जब हम थोड़े बड़े हुए। अब हम लोगों को कॉलेज में सिखाया गया था कि system.out.println इनफाइनाइट लूप तक आप प्रिंट कर रहे हो, राइट? अब हमने वो n लगा दिया, अब वो मेरा सिस्टम जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट करे जा रहा है। सो ये हमें समझने की जरूरत है कि हमें कहाँ रुकना है एंड दिस इज द राइट इम्प्लीमेंटेशन। बच्चे करते थे, हम लोग जब लैब में बैठते थे, मुझे आज भी याद है कि हम लोग 8th क्लास 9th क्लास में स्कूल में जाते थे तो वो जूते हमें बाहर निकाल के, और वो एसी का रूम होता था तो हम लोग उसमें जाते थे। तो आज अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी उस समय के टाइम में, आज टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आज लोग मोबाइल फ़ोन लैपटॉप्स अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में लेके जाते हैं, और कॉलेजेस में स्पेशली बात करूं लेके जाते हैं, बट राइट वे ऑफ यूजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको वही इंसान बता सकता है जो ऑलरेडी उस जगह पर काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस हैज़ वर्कड एंड गैप डेफिनेटली है और रहेगा, बट येस इसको इवॉल्व हो रहा है और ये कम हो रहा है। The more important thing is that it is getting reduced, it is not getting increased, because that will have create, like you do have abundance of the energy and you are not able to put them into the right place, right? And while during your interaction also with some of these institutions which are coming from tier 2 and tier 3, what are the top 2 or 3 gap which you see very often with them? सो अगर मैं इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब मैं बात करती हूँ, इफ़ आई टॉक टू द इंस्टीट्यूशंस, मेरे को जो गैप समझ में आते हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे समझ में आता है कि उनके लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि कॉर्पोरेट की तरफ से उन्हें उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में आज भी उस माइंडसेट के भी लोग हैं जो इंटरेक्ट करते हैं कि यार you should hire only from tier 1 हाँ, tier 1 cities, tier 1 colleges से हायर करना है, tier 1 cities से हायर करना है। सो आज भी ये जो tier 2, tier 3 के बेसिस का जो ये है ना, ये आज भी वो गैप है, जबकि tier 3 के कॉलेजेस बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। वहाँ पर भी बड़े बड़े लैब्स हैं, AI ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स हैं, और आपके ये सेटअप है पूरा, ये जैसे मर्सिडीज ने अपना कुछ कॉलेजेस में अपना पूरा सेंटर सेटअप करा हुआ है, राइट? जहाँ पर बच्चे जाते हैं, वहाँ पर वो पढ़ते हैं, वहाँ पर वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बट
उस वो चीजें विजिबल नहीं होती हैं आज भी। हम लोग जाते हैं, दे आर, मतलब मैं भी अगर कॉर्पोरेट से बात करती हूँ तो मेरी हायरिंग इन पर्टिकुलर कॉलेजेस से होनी है, चाहिए। राइट। दे आर वेरी मच, एंड इंस्टीट्यूशंस का रहता है। हम्म, देन सेकंड ऑब्वियसली एक है, कहीं ना कहीं बच्चों को भी ऊपर से एक माइंडसेट है, दो वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उस तरह से अभी तक क्लैरिटी नहीं है, हम्म, यू नो, कि मैं, मेरा जो करियर पाथ है वो किस तरह का दिखेगा। बिल्कुल। अगर आज मैं कंप्यूटर साइंस सपोज, अब तो स्पेशलाइजेशन आ गई है, हमारे टाइम पे तो स्पेशलाइजेशन थी नहीं, अब स्पेशलाइजेशन आ गई कि एआई या मेकाट्रॉनिक्स हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हो गया, सो मैं, या डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन है। तो अगर मैं डेटा एनालिटिक्स में जाता भी हूँ तो मैं, मेरा फ्यूचर आगे डेटा साइंस का है, तो आगे मेरा इसका क्या फ्यूचर है, क्या पे स्केल होगा, मेरे को किन किन कंपनीज में जॉब मिल सकती है, उसके लिए टूल्स क्या लगने हैं। अभी बच्चों को, और आप गूगल पे जाओगे ना, या आप एआई टूल पे भी जाओगे, वो आपको इतने ऑप्शंस दे देगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मतलब दिस इज द रियलिटी। एआई टूल्स भी हैं, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, आप उसके पास भी जाओगे ना, वो भी आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप उस पर सब कुछ भी डाल दोगे ना, तब भी बच्चे को नहीं समझ में आएगा कि अच्छा। एंड ऐसा नहीं है कि बच्चा डम्ब है, it has so many options for you to give. Now the student when sitting, he or she has so much of pressure कि अरे मेरे पेरेंट्स का इतना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो मैं इतने कॉलेज में इतना इन्वेस्ट हो रहा है, इतने लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो क्या मैं इतनी सी ही जॉब लूं, इतने पैकेज की ही जॉब लगेगी क्या मेरी? अभी भी पैकेज रेशियो नहीं बढ़ा है। And I think the main important also the gap which I see is the exposure, right? For एग्जैक्टली example, जो जो high innovating company हैं, they are not going there, right? So हाँ, they are not tapping into that potential, which means they are missing that exposure, and they are just getting the either the standard which is happening in the IT कि किसी को वेबसाइट बनानी है, किसी को ये करना है, वो छोटी कंपनियां, and they are not able to think ki how these big company are going to hire, how this is going to be, I'm getting exposed to them. And your platform is exactly doing that part, because by just sitting even in the tier 1 or tier 2 city, he do have the access what is really happening into the world. And if एग्जैक्टली। he is interested, right, it is of course not always like कि एक job post हुआ and something, if he is interested he can learn more, and he can also he can look for the opportunity further. And maybe if that is not the right fit, maybe there are other companies, or if some different type of interest which he is indicating based on his, maybe not today, after like a 2 or 3 months the new companies are coming. Yes, मतलब that is exactly what you mentioned. Yeah. One more thing which I see in your profile is like sales, marketing, and brand strategist, right? So how do you define this role, and how do you make sure, right, the relationship which you are building it with the corporates is in the long term, and their experience is not just a one-time activity, but they are becoming more kind of the long-term partner with you. So okay, so let me start it this way. As an experience officer, user experience, chief experience, customer experience, as an experience officer, अगर मेरे ब्रांड पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे जो भी आ रहा है, उसको वो एक्सपीरियंस, हम किसी के घर जाते हैं, हमें अगर उसके यहाँ एक्सपीरियंस, खाना एक बार को ऊपर नीचे होगा चलेगा, लेकिन अगर तहजीब नहीं अच्छी मिलेगी, अगर हमें वो आदर सत्कार नहीं अच्छा मिलेगा, तो हम कभी आगे नहीं जाएंगे। हमें लगेगा कि अरे यार उनके यहाँ तो वो ऐसे बात करते हैं, और ये जनरली घरों में होता है, राइट। बट अगर मैं सेम तरीके से अगर मैं प्लेटफॉर्म पर बात करूँ, तो ये मेरा घर है। अगर मैं यहाँ पर तहजीब और अदब से आकर अपने प्लेटफॉर्म को नहीं कहती हूँ कि भाई आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा है, देखो प्लेटफॉर्म में हो सकता है, देखो टेक्नोलॉजी है, ऊपर नीचे कुछ हो गया कोई बात नहीं, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो वो मैनेज हो जाएगा, अगर मेरे ब्रांड को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो। सो जैसे मैंने पहले मेंशन करा था, एट द अग्रीमेंट स्टेज हम इंश्योर करते हैं कि भाई एक बार मैं कस्टमर के पास बैठूं, एंड मैं इंश्योर कर लूं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, और वो चेकलिस्ट रहती है। एंड जो डिलीवरी टीम होती है उनके साथ जब तक वो एंगेजमेंट चल रहा है, आई इंश्योर अलॉन्ग विद माई सेल्स पर्सन कि वो जो है, चाहे किसी भी लेवल पर हो, आई सिट इन द मीटिंग एंड आई इंश्योर कि भाई ये जो पॉइंटर्स हैं ये मीट हो रहे हैं, ये इस डेट पर,
तो हमारा एक यूनिवर्सल ट्रैकर रहता है, उस ट्रैकर के बेसिस पर वो डेट्स डिसाइडेड होती है, वो पाइपलाइन डिसाइडेड होता है कि अच्छा इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, एंड दैट इज वेयर यू नो अ स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द क्रॉस टीम्स हैपन। क्योंकि एक इंसान लग के प्रोजेक्ट नहीं एग्जीक्यूट करता है, देयर आर मल्टीपल पीपल हु गेट इन्वॉल्व्ड एंड सिर्फ आप मेंशन ये सोचो कि लीड्स कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि प्रोजेक्ट इतने बड़े स्केल के होते हैं, राइट? सो यू हैव टू हैव टीम्स अंडर यू हु आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, सो दैट इज देयर। देन अगर मैं टैलेंट एक्विजिशन की बात करूं या मार्केटिंग की बात करूं, तो हम लोग उस पॉइंट पर कहाँ पर आते हैं जहां पर अगर हम किसी और कॉर्पोरेट के लिए कोई बच्चा भी हायर करके दे रहे हैं, सो अगेन इट इज अ मार्केटिंग एक्टिविटी, राइट? इट इज अ मार्केटिंग एक्ट। आप किसी बच्चे को या किसी एक्सपीरियंस भी बंदे को आप वो कंपनी सेल कर रहे हो, राइट? आप उस कंपनी को वो टैलेंट सेल कर रहे हो, right? Ultimately it is a branding activity only, so who better than me is able to understand what a brand wants, what a user wants, so obviously branding has to be holded by someone जो कि इस पूरे experiences को समझकर एक formulated strategy दे पाए, right? And the team obviously उसके मेरे कोई भी decisions अकेले के नहीं होते हैं, as I mentioned I am a people person, so obviously I have to obviously talk with the team and my teams are such कि वो obviously आपस में बात करेंगे and कुछ ना कुछ innovative कुछ ना कुछ निकल कर आता ही आता है जिससे you know हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। So this is what our branding has obviously mean. हम लोग बहुत ज़्यादा you know viral reels और इन सब चीज़ों की तरफ नहीं रहते। Honestly आप हमारा पेज भी देखोगे, but what we try to provide is the basic guideline, basic output जो हम लोग कर रहे हैं, हम बस वो बाहर दे पाए। So it is like sharing what is reality looks like on the ground rather than some fancy thing. And what you also said is like the balance, because your platform is being used by as a user, Yes. is used by like the brand, the companies, and also by the institutions, which are very different from the user persona perspective. Correct. Because everyone thinks differently. Everyone thinks everyone tries to use the way they wanted it to use, and because of that, if you try to make happy everyone, then your platform will become complex. If you just try to kind of not fulfill everybody's need, then they're like, hey, this platform is not for you. So, Exactly. but this is like a very critical, so that you maintain all the balance, so that these people are taking real advantage. So आप देखिए ना, assessments हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉलेज यूज करता है। अभी कल ही एक कॉलेज ने हमारे प्लेटफॉर्म पे अराउंड 120 स्टूडेंट्स का असेसमेंट करवाया है एंड हायरिंग करनी थी, तो वो उन्होंने बोला कि भाई पहले हमने ही बोला, हमने कहा पहले असेसमेंट कर लेते हैं, हमने कॉर्पोरेट को पिच करा, हम पहले असेसमेंट कर लेते हैं। सो अराउंड हमारे पास 500 एप्लीकेशंस थी, असेसमेंट हो तो कॉलेज ने असेसमेंट प्लेटफॉर्म यूज करा। कॉलेज हमारे जनरली जो टेक्निकल हायरिंग हो रही है वो हैकाथॉन्स के थ्रू होती है, तो हम कॉलेज में हमारा प्लेटफॉर्म हैकाथॉन के लिए भी यूज करते हैं। देन कॉर्पोरेट हमारा प्लेटफॉर्म हायरिंग के लिए यूज करता है, कॉर्पोरेट हमारा प्लेटफॉर्म हैकाथॉन्स के लिए यूज करता है, और यूजर आता है उस पर, उसके लिए हैकाथॉन्स हैं, जॉब्स हैं, तो और हमारे प्रोग्राम्स हैं ओपन इनोवेशन के। सो ऑब्वियसली हम लोग एक ऐसा सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं जो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्ले कर रहा है, एंड तीनों की इतनी अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। सो दैट इज एंड आई थिंक इसमें मैं बहुत ज्यादा कहूंगी कि हमारे जो को फाउंडर्स हैं, हम चारों की शायद ऐसा नेचर है कि सबको साथ लेके चलने का। हम लोग पर्सनल लाइफ में भी ऐसे हैं और हम लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे हैं कि हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। इस वजह से शायद हम लोग सभी को अकोमोडेट कर पा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, टच वुड, विदाउट एनी हिकअप्स। So Sangya, when do you pitch to any organization for any high impact hiring, etc., what are the key metrics, etc., which you also agree with the organization, not only the number of people which got hired by this? All right. So जब भी I go for pitching to any organization, first of all my motto is to ensure कि the organization's vision of conducting the hackathon is clear or not. Okay. Because at times we are blooming, like India is blooming into startups. There are a lot of startups that are blooming, and it is a privilege for our generation to see that. Being a startup owner, I can say that. So when I see so many startups, there are a lot of peer pressure also. अच्छा मेरे competitor ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है, जरूरत है। बट ऐसा क्या जरूरी है कि उन्हें उस चीज की जरूरत है भी या नहीं है?
so much investment is needed or not needed at this point of time, whether it is the right time for them to hire or not. I as a business owner, obviously मेरे तो platform पे पैसा आ रहा है, मैं क्यों ही मना करूंगी? But it is not just about, you know, again my role comes in, chief experience officer. I have to ensure कि भाई ये brand मेरे पास दोबारा भी आए. So वो दोबारा आने के लिए मेरे को उनका वैल्यू क्या है, उनका विजन क्या है, वो क्लियर होना चाहिए, तभी मैं वो आगे दे भी पाऊंगी. जैसे मैंने आपको बताया यूफोरिया इनोवेशन चैलेंज, नाउ द फाउंडर इज जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज सो क्लियर विद हिज विजन कि मेरे को इसी तरह के बंदे हायर करने हैं. अब उन्होंने उसके बाद 2 की जगह 6 हायरिंग करी, उन्होंने 1 की जगह जितनी भी हायरिंग करी, वी डिड नॉट चार्ज, बट ही वाज सो सैटिस्फाइड विद द हैकाथॉन कि मुझे फ्रेशर हायर करना था, उन्हें एक्सपीरियंस भी मिला, राइट. So this is the kind of work that we do. So obviously skill arbitration ये एक सबसे important factor होता है. Brand की एक employer branding, you know, that is very important, so that जो भी लोग apply कर रहे हैं उन्हें समझ में आना चाहिए that why this hackathon is getting conducted and why you should apply. What is the right audience? You know, अगर मेरे को B.Tech चाहिए या MCA चाहिए, so मैं BBA with a specialization नहीं हायर करूंगी, you know, BBA with AI specialization. So they should be clear कि मेरी इस requirement है यहाँ या नहीं है, right? And then obviously एक retention rate की जब आज हम बात कर रहे हैं, right? Attrition एक कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि हैकाथॉन कहीं ना कहीं उसको सॉल्व तो नहीं कर रहा है फॉर श्योर, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जिसपे स्टूडेंट्स या जिसपे जो एम्प्लॉयज हैं जो एक ब्रांड को ज्वाइन करते हैं, तो वो एक लंबे समय के लिए, क्योंकि वो विजन से जुड़ पाते हैं ब्रांड की एक अपॉर्चुनिटी, एक यू नो नॉट जस्ट एन एज एन अपॉर्चुनिटी, वो उनके एक प्रोडक्ट से जुड़ पाते हैं. इस वजह से शायद वो थोड़ा ज्यादा रुकते हैं. सो इस वजह से वो एक यू नो पिचिंग, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक ब्रांड अपना विजन, अपना प्रोडक्ट किस तरह से वो बिल्ड कर रहा है, उसका फ्यूचर कैसा दिखेगा, आज से 20 साल बाद मेरा ब्रांड कैसा दिखेगा, यू नो, ये प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, वो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उन पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ व्हाट आई पिच. एंड आई थिंक अपने आप में ये एक पूरा सफिशिएंट रोल प्ले करता है. पीयर प्रेशर में जस्ट एक, एंड अगर आप पीयर प्रेशर में हायरिंग कर भी रहे हो ना, तो उसमें आप हमेशा यू नो यू विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन राइट कैंडिडेट्स, एंड राइट कैंडिडेट्स के साथ साथ आप अगर मान लो आपने ज्वाइन भी करा लिए ना, तो वो कभी आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, एंड अपने आप में वो एट्रिशन रेट गिरता ही गिरता है. आई मीन बढ़ता ही बढ़ता है एट्रिशन रेट. सो या. And one more thing also which we see is like because we are living in the digital age, right? And there's like lots of noise, right? And when I say the noise means there are like popular medium through which like you can spend your entire day. And as a kid, right, who is into the college, who is just starting, it's like I'm not able to, you know, focus more on this learning, and I'm also not clear about the value proposition. Hey, why should I learn for a specific technology? Why should I be ready for, like, you know, the future, etc.? Do you have some tips or some guidance, etc., how they can start focusing more on these learning rather than, you know, just spending time more on the internet? ऑब्वियसली आप किसी को भी स्क्रीन और इन सब से आप अपना टाइम उन्हें कैसे यूटिलाइज करना है, दे आर द बेस्ट पीपल फॉर इट. हर किसी की लाइफ अलग है, बट विद द रनिंग यू नो बिजनेसेस टुडे, विद द रनिंग जनरेशन टुडे, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप जितना स्किल बेस्ड कंपटीशन से पार्टिसिपेट कर सकते हो, डू दैट. हमने एक कैंपेन भी चलाई थी, एवरी स्टूडेंट वन हैकाथॉन. सो वंस यू, एंड एवरी कॉलेज वन हैकाथॉन एटलीस्ट. सो जितने भी हम नीचे तक पहुंचे थे, यू नो, हम गुनुपुर तक गए थे फॉर अ कॉलेज इन GIET टू कंडक्ट अ हैकाथॉन इन देयर कॉलेज, एंड वी कंडक्टेड एंड वी डिड अ हायरिंग. सो बेसिकली जितना बच्चा यू नो उस हैकाथॉन के थ्रू अपने उसमें पार्टिसिपेट करेगा, राइट, बच्चा देखेगा कि अच्छा दुनिया कितनी है, किस तरफ बढ़ रही है. क्योंकि आप एक रूम में बैठकर आपको लगता है कि अच्छा मैंने तो ये कोडिंग कर ली, मैंने लीड कोड पे ये कर लिया, मैंने फलाना जगह इन टूल्स पर कर लिया, तो मैं ही सब कुछ हूँ. बट व्हेन यू सिट इन अ कंपटीशन, यू मीट द पार्टिसिपेंट्स अक्रॉस इंडिया,
एंड तब समझ में आता है कि अच्छा यहाँ तो एक्चुअल कंपटीशन है competition है. और किस तरह की हायरिंग चल रही है, किस तरह की इंटर्नशिप चल Yeah. रही हैं. And it might be that within that his own bubble, his in or हाँ. college, etc. He might know, hey, I know I'm expert, I know everything. Yes. My subject marks are good. But when he comes and then say like there are like a million people, and okay, what are they doing? What are they Exactly. building, etc. And that might be give them a kick. Hey, it is no time just spending this time. I now need to learn more skill set, etc. Because the technological shift is also happening at a very fast. So this is a very important thing जो कि आप हैकाथॉन में आके करते हो. So that is why हैकाथॉन्स, challenges हो गए, ये सब एक competition जो आपको टीम competitions होते हैं, टीम participations होते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं आपको exposure के लिए. Yeah. अपने बबल में तो हम ही राजा हैं. And that also gives you the very different exposure to the cultural also, right? For example, for that person it would not have been possible because he is just into the college, maybe he has taken 1 or 2 trips, etc. But it was not possible for him to meet and to work with like such different audience. And that is like one of the key challenges, as you know, right? Hiring is definitely one part, but how do you retain them? Because when it comes to the retaining, it is not always only about the technology, but it is about the people, it is about the process. How does the organization wants to take the Exactly. advantage from this? What are like some of the key thing which you see, from these organization perspective also, which they should add so that they can not only hire a good talent but also retain them for a longer period? I think first of all जो मुझे लगता है, not just because I am a hackathon platform, but मुझे ऐसा लगता है कि हमें corporates को they should be more open towards conducting both hiring and innovation challenges. Okay. So not just hiring challenge, आपने hiring करी well and good है, but innovation challenges भी जरूरी हैं जहाँ पर आप भले ही hiring मत करो, but you at least provide them the opportunity to sit with you in interviews. They to provide internships आप दो या फिर आप उन्हें live projects दो जिसमें they are able to get the exposure, right? And once the employee has joined within your ecosystem, you should be able to conduct employee engagement hackathons जिसमें not just कि आप सिर्फ एक ये नहीं कर रहे हो कि ठीक है अभी जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है हम सिर्फ उसका, अगर आपका प्रोडक्ट है तो वो आगे कैसा दिखेगा, क्योंकि ये एक this is a research that every techno and this is what we have also seen, every technology starts rebuilding itself after 20 years. Agree. Right? So 20 साल बाद अगर वो टेक्नोलॉजी अपने आप को रीबिल्ड कर रही है और अगर 20 साल से हम वहाँ बैठे हैं तो मतलब ऑब्वियसली ये तो हर 20वें साल, हर 15वें साल से हम सुनना शुरू कर देंगे कि भाई नौकरियां खतरे में है. राइट? तो अगर हमने ऐसा कुछ अपना, एक्चुअली क्या एम्प्लॉय की दिक्कत है इतनी, शायद हो भी सकती है, लेकिन क्या माइंडसेट हमारा ऑर्गेनाइजेशन थ्रो अप कर रहा है अपने एम्प्लॉइज को कनेक्ट रखने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को सस्टेन कराने के लिए, स्केल करने के लिए, कि 20 साल बाद अच्छा मेरा प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा तो मेरे को किस तरह की हायरिंग करनी है. राइट? तो वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है और वो छोटे छोटे यूनिट से स्टार्ट हो सकता है. एक छोटा प्रोडक्ट यूनिट है, ठीक है, हर किसी के पास बहुत डिलीवरी चैलेंजेस होते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है. मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ तो मैं इस चैलेंजेस को समझ रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हमें इस कल्चर को जब तक हम लेकर नहीं आएंगे ना, तब तक एक जो हम वो बात करते हैं ना, एक हैप्पी हेल्दी वर्क कल्चर, एक टेक्नोलॉजी driven companies, हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए. And one more thing is also like they also needs to give what is the real perspective. For example, now we see like more and more AI is coming, and the work which we used to do it might not needed that much time, right? So your productivity is improved. It is also good that they do share it, the ground reality. For example, not through hiring but through innovation, etc. So that they can also tell, hey, this is the future, and there also they can say, hey, like for example, I am just focusing maybe on a website development skill set just to learn, but now I say, hey, in the near future it will become very easier for it. So if you are just investing only in the digital and only in this niche skill set,
there might not be more job opportunity, but rather now you learn more around the analytics, you learn more around the artificial intelligence, etc. So that when you come to the organization, you are prepared for the future, not just ready for what is happening Correct, currently. and that is how someone will connect with you. Hmm. Else तो वो that is where technology gets a refreshing कि भाई यहाँ पर तो अब टेक्नोलॉजी का काम नहीं हो सकता. कनेक्ट बनाने के लिए AI can never play that role. You have that is a physical और emotional connect जो कि एक employer एक employee connect करता है यहीं पर. बिकॉज जैसे मैंने बोला एम्प्लॉयर को जब तक एम्प्लॉय से वो वैल्यू नहीं मिलेगी और जब तक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से वो वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक कभी भी हमारा ये कनेक्ट स्टैब्लिश नहीं होगा और ग्रोथ इज द मेजर पार्ट. एग्री. एक जब मैं एम्प्लॉय को लेकर आती हूँ, मैं किसी को हायर कर रही हूँ कोई भी कंपनी, तो वो ऐसा नहीं कि आज के लिए हायरिंग कर रहा है, वो हमेशा फ्यूचर के लिए हायरिंग करता है. किसी भी टीम में आप देख लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, हमेशा क्लियर होता है कि अच्छा 6 मंथ्स तक तो हमें ये पता होता है कि हमें इससे क्या वैल्यू निकालनी है, किस हमें क्या वैल्यू देनी है, क्या रिजल्ट्स होने चाहिए. उसके बाद हम टारगेट्स और नंबर्स पर बात करते हैं, क्योंकि 6 महीना तो बंदा समझ पाता है कि अच्छा किस तरह के मुझे क्या डिलीवर करना है, एंड ये रियलिटी है. एंड ये मैं तब बोल रही हूँ जब मैं खुद अभी ये बात कर रही थी कि आज कंपनीज को चाहिए कि हम डे 1 पर प्रोडक्टिव हो जाएं, लेकिन वो 6 मंथ तक वो कंपनी से कनेक्ट कर पाता है. अगर कंपनी से आप कनेक्ट नहीं कर पाए तो आपको ऑब्वियसली एम्प्लॉय 3 महीने में छोड़ के भाग जाएगा. वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, चाहे वो आप कितना भी प्रोडक्ट पर आपके काम कराओ, तो वो कनेक्ट कैसे होगा? वो कनेक्ट ऐसे ही बिल्ड होगा जब आप उसे उसका फ्यूचर दिखाओगे. So, Sangya, being a co-founder also and while working with these many organizations, how do you maintain, the balance of creating new innovative solutions, but also those are aligned with the organization goal as well? So, very interesting question. बीइंग अ हैकाथॉन प्लेटफॉर्म, मैं अभी इतना बोल तो रही हूँ कि कॉर्पोरेट्स को ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए. सो मतलब कोई भी मेरे से ये सवाल पूछ सकता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में विद इन द सिस्टम जब आपको इतनी रियल टाइम डिलीवरीज मैनेज करनी होती है, आप उसको कैसे कर सकते हो. सो मैं आपको एक चीज शेयर करती हूँ. हम लोग अपने इंटरनल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वी कंडक्ट इंटरनल हैकाथॉन. सो टेक टीम में अलग होता है, नॉन टेक में अलग होता है, बट देयर इज वन हैकाथॉन जो कि हम लोग हर महीने कंडक्ट करते हैं, जिसमें टेक को नॉन टेक के साथ टीम अप करना है और नॉन टेक को टेक के साथ में. एंड यू वोंट बिलीव, जो हमारा ड्रिल जो कि हमारे हैकाथॉन प्लेटफॉर्म है, उससे कुछ ऐसे फीचर्स है जो इन हैकाथॉन्स के थ्रू ही निकल कर आए हैं. ये बच्चे इतना एक्साइटेड होते हैं कि अच्छा आज मैं डेली वर्क रूटीन से ब्रेक लेकर आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. भले ही वो मेरे प्लेटफॉर्म का ही काम है, बट इट इज डिफरेंट, डेली डिलीवरेबल से अलग है. सो दिस इज अ टाइप ऑफ कल्चर जो कि हम लोग बिल्ड करना चाह रहे हैं. अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे, सो आई डोंट थिंक कि हम लोग बाहर भी ये चीज को कहीं मतलब रेप्लिकेट कर पाएंगे. क्या नहीं कर पाएंगे. इट्स वेरी इजी टू से, बट हाउ सेल्स टीम वर्क, जो वो देखता है, जो उसके पास प्रोडक्ट है, वो वही तो पिच करेगा ना बाहर. सो यस, दिस इज हाउ इट इज. So you are saying like these things are important, but those are also aligned with the organization goals, visions and goals. And in this way, like you can improve your own platform also, and there could be anything. Yes. A lot of things happen. जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी जिसमें हैकाथॉन की बात करी थी, एग्रीटेक हैकाथॉन, इन्होंने ये इनोवेशन हैकाथॉन ही करा इन्होंने. दिस इज एन MSME, राइट. द फाउंडर इज इज अ पर्सन जो कि उसको वैसे तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बट लाइफ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे. काफी सीनियर हैं वो मतलब उतनी अच्छी जो वो बताते हैं एजुकेशन वगैरह जो भी परसू होने को थी नहीं हो पाई या जो भी रहा. सो बट जब उन्होंने, बट ही इज वेरी ओपन टुवर्ड्स न्यू थिंग्स. अब कमर्शियल्स वगैरह उन्होंने हमारी सेल्स टीम के साथ बाद में डिस्कस किया. ये हैकाथॉन जब उन्हें पिच करा गया तो वो उसके लिए पहले अलाइंड हो गए थे. करना तो है, ठीक है, कमर्शियल्स हम बाद में देखेंगे. सो ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन. अब उनका ये आइडिया है कि भाई मैं हैकाथॉन्स में मैं अगर एक आइडिया भी ऐसा निकाल लेता हूँ
जो कि इनोवेटिव हो, एंड ही इज वेरी हैप्पी। हमने 3 प्राइजेस निकाले थे, उसके बाद उन्होंने 2 कंसोलेशन प्राइजेस भी दिए कि अरे ये Okay. बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एंड उन्होंने इन 5 आइडियाज को अपने अंडर इंक्यूबेट करने का प्लान करा है। उनकी फर्दर हायरिंग की बात करिए, अगर इनमें से उनका कहना है कि अगर मेरा एक भी आइडिया वर्क अराउंड हो गया मेरे रिसर्च एंड इनोवेशन विंग के द्वारा, सो सिंपल सी बात है, मेरा ये कॉस्ट तो मोनेटाइज है, एंड आई हैव शॉर्टलिस्टेड 5 आइडियाज, राइट? सो इट इज अबाउट ब्रिंगिंग अप इनोवेशन। R&D सेंटर हम बाहर लगाने की जगह अगर हम अपने केबिन्स में लगाकर वहां पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें, स्पेशली स्टार्टअप्स, सो इट इज गोइंग टू ब्लूम। और हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है सर, स्टार्टअप्स आजकल बहुत आगे निकल रहे हैं और निकलना भी चाहिए। गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है, सब कुछ है। मैं एक ही चीज कहूंगी, हम लोग में से हम बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है, बट इनोवेशन कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है, राइट? और वो इनोवेशन अगर हम अपने कल्चर में डालेंगे ना, तो जो हमें बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ती है, वो बच्चों को नहीं चाहिए, वो एम्प्लॉयज को नहीं चाहिए। उनको रोबस्ट काम चाहिए, अच्छा काम चाहिए, जो कि उनके करियर को बिल्ड करे। So you are saying like innovation is not only a one time, it is a continuous activity. जर्नी प्रोसेस है ये। Is part of your life. How do you ensure? And this is something which you do ensure internally as well, and make sure these are aligned with the organization goals. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इनोवेशन कर रहे हैं और आउटकम कुछ उसका आ नहीं रहा। हाँ, मतलब वो एक्साइटमेंट फिर कहाँ से आएगा? आपको अपनी जॉब के लिए भी तो एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, तो वो बहुत जरूरी है जी। And one more thing which I see is lots of changes are coming, right? Whether it is due to AI or how the technology itself is changing. Do you also see the same change coming for the talent engagement space as well? And do you also see like the in the future whether there will be a human in as part of the process in the loop, or it will be completely driven by the AI itself? नहीं। सो मैं जितना मैं समझ पाई हूँ इन माय वास्ट करियर एक्सपीरियंस, मैं इतना ही कहूंगी सर, AI इज जस्ट लाइक अनदर टूल। AI definitely is more intelligent. AI definitely can give you formulas. AI definitely can give you solutions right away. But जो एक टच होता है ना, ह्यूमन टच, देखो आप जब तक एक एम्प्लॉई से, अगर आपको किसी कंपनी को एक कैंडिडेट को सेल करना है, सेल इन द सेंस कि उसके यहाँ एक एम्प्लॉई को ज्वाइन कराना है, जब तक आप उसे कंपनी सही से समझाओगे नहीं, सही से सेल नहीं करोगे, कोई भी ब्रांड है मेरे प्लेटफॉर्म पर आने पर जब तक उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी, तब तक वो कभी भी उससे जुड़ नहीं सकता है। वो जुड़ेगा नहीं तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कभी भी वो एंगेजमेंट बन ही नहीं पाएगी, कनेक्ट नहीं बन पाएगा। अब वो काम कोई भी AI टूल नहीं कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं किसी भी कैंडिडेट को एक AI जो हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं AI ने स्क्रीनिंग कर दी, ठीक है, अब मैंडेटरी स्किल्स हर कंपनी को चाहिए कि भाई उसको डेवऑप्स भी आए, उसको क्लाउड भी आए, उसको क्यूबरनेट्स भी आए, उसको AI भी आए, उसको सब कुछ आए। अब AI टूल बन गया, AI टूल के ऊपर फीचर लग गए कि भाई ये बेसिस पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मेरे प्लेटफॉर्म पे आए 10,000 रेज्यूमे, सारे स्क्रीन रिजेक्ट। AI टूल ने तो ऑटो रिजेक्ट कर दिया ना। अब लेकिन यहीं पर अगर ह्यूमन होता है, AI टूल इज इम्पोर्टेंट कि अगर हम मेजरेबल पैरामीटर्स डालें कि अच्छा इतने स्किल्स जो मेरे प्राइमरी हैं ये मैंडेटरी हो, ठीक है, उसने अच्छा जो प्रोजेक्ट्स करें उसके बेसिस पर क्या स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ये हमेशा एक ह्यूमन टच ही दे पाएगा, राइट? उसके बेसिस पर मान लो मेरे प्लेटफॉर्म पे आए 10,000 रेज्यूमे, ठीक है, अब उसमें मान लो मैं कहती हूँ 500 रेज्यूमे ही वैलिड हुए उस स्क्रीनिंग के बाद, ठीक है, 500 में से अब मैं फिर AI की अगर बात करूँ, AI इंटरव्यूज ले रहे हैं, उस इंटरव्यू जो AI बॉट वहां बैठा है उसको फीडिंग कर दी गई कि तुमने ये करना है, ये करना है, इस बेसिस पे करना है, उस बेसिस पर तो सारे ही चले गए, ठीक है। And that might be also key because of the sample set. For example, you are saying like you are more focused around the tier 2 and tier 3 cities. For example, as a part of the pipeline, there might not be any profile which are coming from them. As a company, if they are just preferring like the tier 1, it will auto reject because this is not something available. But those candidate might be very good, from the company perspective. And this is where like as a human, if you are in the loop, you can say yes,
you were looking from this skill set. Of course, we tried looking into the tier 1, but we couldn't find. But there are some very good profiles which can be useful for you, and this is how you initiate that conversation. एग्जैक्टली जब हम इंटरव्यूज लेते हैं वी ऑलवेज से अच्छा ठीक है चलो इसमें ये स्किल थोड़ी कम है बट दिस पर्सन इज पैशनेट दिस पर्सन इज इंटरेस्टिंग ही कैन वर्क फॉर माय प्रोजेक्ट एंड स्पेशली फॉर फ्रेशर्स आज तो जमाना स्किल का हो गया है हमारे टाइम पर व्हेन आई वाज अ फ्रेशर आई वाज हायर्ड बिकॉज ऑफ माय कम्युनिकेशन स्किल्स राइट बिकॉज दैट वाज द पैरामीटर ऑफ हायरिंग राइट HCL में आई गॉट प्लेस्ड एंड दैट वाज द पैरामीटर फॉर माय हायरिंग राइट नाउ एज अ फ्रेशर मेरा वो पैरामीटर था तो समवन देयर गेव मी अ चांस राइट कि भाई ठीक है इसको आता नहीं है मैं ट्रेन करूंगा या करूंगी मेरी टीम ट्रेन करेगी और ये कुछ ना कुछ कर लेगी एंड आई वुड थैंक दैट पर्सन दैट डे दैट अगर उन्होंने मेरे को वो मौका नहीं दिया होता मैं यहाँ नहीं बैठी होती राइट आज अगर हम सब कुछ AI बेस्ड कर देंगे सो दैट 1% जिनको 1% लोगों को जिनको चांस मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्किल वो रह जाएगा वो रह गया तो फिर सर मतलब ह्यूमन टच तो एकदम ही चला गया ना और वो पॉसिबल नहीं है आप बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा और वो ह्यूमन टच कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा and this is exactly the impact as well, right? Because of someone who is getting an opportunity, and if he's losing that opportunity, there is a big impact to him which we can't really just say here because of AI did that. That is why the human in the loop is more important, specifically as we are advancing with the technology. Yes, agreed. So Sangha, like I know you work very closely with the students, you also work very closely with the institution as well as the companies, etc. What is the key piece of advice which you will give to the upcoming college professionals or who are just starting their career? What are the skill set, etc.? What are the the knowledge building, etc., which they should be doing? Right. So I would just say स्काई से ऊपर भी कुछ होता है सो दैट इज द लिमिट फॉर यू जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग फेलियर्स सबकी लाइफ में आते हैं हमारी लाइफ में भी बहुत फेलियर्स आए हैं हमारी जॉब्स में भी आए हैं हमें भी ऐसा एक्सपीरियंस आया है लोगों से कि यू कैन नॉट डू इट as a woman better that you go for a government job you settle for a teacher की नौकरी I come from a कायस्थ family हमारे यहाँ जॉब करना तो बहुत important है लेकिन it is very important as well कि आप फैमिली को भी साथ लेके चलो राइट तो उस समय कहा जाता था टीचर की नौकरी बहुत बढ़िया है लड़कियों के लिए BEd कर लो अपना घर पे करो बट BEd भी करना आसान नहीं है और वो नौकरी भी आसान नहीं है आज मैं जो कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं उन हार्डशिप से ऊपर उठ के कर रही हूँ सो माई ओनली मैसेज टू ऑल द यंग पीपल इज दैट डोंट गिव अप जस्ट मार्केट चेंज हो रहा है जॉब्स चेंज हो रही हैं रिक्वायरमेंट चेंज हो रही हैं पढ़ाई चेंज हो रही है बट जो लायक है उसके लिए काम हमेशा रहेगा और हमेशा रहेगा कोई AI किसी की नौकरी नहीं ले रहा है हमें कहा जाता था जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी आई वॉज इनटू टेस्टिंग हमें कहा जाता था कि मैनुअल टेस्टर से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था कि आपने कि 2020 में मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स खत्म हो जाएंगी आपको ऑटोमेशन सीखना है मैं कहूँगी बिल्कुल 70% खत्म हुई है आज भी मैनुअल टेस्टर्स की लेकिन रिक्वायरमेंट रहती है बट एट द सेम टाइम क्या हमें ऑटोमेशन सीखने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल थी क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया मूव कर रही थी उस हिसाब से बिल्कुल जरूरत थी बट क्या टेस्टर्स की जॉब खत्म हो गई नहीं आज भी कंपनीज में टेस्टिंग की जॉब है इनफैक्ट जो डेवलपर्स है उन्हें भी कहा जा रहा है आप स्किल्ड हो टेस्टिंग में क्योंकि टेस्टिंग इज द एंड गोल एंड प्रोडक्ट जब तक आप एंड प्रोडक्ट की टेस्टिंग नहीं करोगे वो प्रोडक्शन पे जा ही नहीं सकता है राइट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब्स किसी की नहीं जाने वाली हैं यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एंड द पर्सन हु इज नॉट अपग्रेडिंग आप किसी भी आज के टाइम पर आप गवर्नमेंट जॉब में रह लो आप नॉट बिकॉज कि आपकी जॉब जा रही है इसलिए कि आपने अपने आप को स्किल्ड नहीं करा है समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बढ़ाया है और ये बात रियलिटी है मैं कहूंगी अगर समय के हिसाब से तो आप अपनी सोच को भी नहीं आगे बढ़ाओगे ना तो आप तो अपने परिवार में भी स्टैग्नेंट हो जाते हो आपकी लोग सुनना बंद कर देते हैं आपसे लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं अगर आप 2025 के समय पर 1962 की बात करोगे तो कहीं ना कहीं आज आपको अपने परिवार में भी रिटेंशन फील होगा वहां पर ले ऑफ्स नहीं होते हैं वहां पर रिटेंशन होते हैं राइट सो ये मेरा मैसेज है सारे ही यंग प्रोफेशनल्स अपकमिंग प्रोफेशनल्स सभी को
Ji. No, and I think this is very much important also, right? So, for example, the learning and the upskilling should never be stopped. Yes. So, thank you so much, Sangya. I think it was very well organized. How did you manage, the overall experience of the company, and also how you are managing, the different units, starting from, the talent, also making sure, the companies are in sync, the colleges are in sync, and they are like creating the impact also from, the student perspective. The students are getting placed. So now I would say even the CXO should be a position itself within every organization which are trying to build, the platform, so that the experience remains smooth and they are able to get the outcome. Thank you so much, Kuldeep ji, for having me here. It was a privilege. It was amazing to talk to you. इतने सारे questions. I think you thank you for giving us the platform जहाँ पर हम अपनी बात बोल सकें. And definitely CXO बहुत ज़रूरी है किसी भी organization के लिए experiences को ensure करने के लिए, especially startups, एक mid-size companies के लिए. So yes, thank you for bringing that up, giving that exposure. So yes, your platform is definitely playing a great role, and lots of good wishes, best wishes, and let's look forward to a longer and greater collaboration together. That's it for this episode of Techie Talks with Kuldeep. Until next time, keep learning and keep innovating. Thank you for watching.